Hello guys, welcome back to my YouTube channel Pravans Academy. In today's class, we are going to start the chapter of class 9 physics. The name of the chapter is gravitation. In this chapter, we are going to cover some of the most important topics from this chapter. We don't do the basic things because you all know about whatever many things you have learned. But in today's class, we will only cover some of the important topics. These are the total topics we have to cover in this chapter, but we will break these topics into 3 days. In the first day, we will read universal law of, in the first day, what we are going to read? In the first day, we are going to read universal law of gravitation, then free fall. In the second day, this is the first day. In the second day, we will read these three concepts: acceleration due to gravity, mass and weight, and thrust. And in the last day, we will cover pressure, weight and force, and Archimedes principle. So these are the theory. We will only cover the theoretical part. Okay. And if any derivation will be there, we will do the derivation. But except this all, we are also going to do one session of problematic part. Okay, in one session we will be discussing about the problematic part. Okay, so in problematic part we are going to discuss what are the different questions we can take by reading into this chapter. Okay, so let's get started about the universal law of gravitation. So today's main topic will be universal law of gravitation and free fall. So I will only make the videos which most of you will be interested in, because there are some few people. I also wanted to make the videos on motion and force and laws of motion, but many of the students told that they have a lot of doubts in the gravitation chapter. That's why I'm making this video for gravitation. Okay, so let's get started. तो gravitation होता क्या है? What do you understand by the term gravitation? ये पहले आप लोग जान लीजिए. The force of attraction which attract each and every objects in the earth or in the universe is known as gravitation. That is the simple definition of gravitation. Okay, now in gravitation the first topic is universal law of gravitation. आइजैक न्यूटन के दिमाग में ऐसा क्या चीज आया कि ग्रेविटेशन तो है, हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को खींच रहे हैं वही ग्रेविटेशन है, लेकिन इस ग्रेविटेशन का एक लॉ है जो कि लॉ आइजैक न्यूटन साहब ने दिए थे. उस लॉ का मतलब क्या है वो हम जान लेते हैं. तो वो लॉ को अच्छे से समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है. आप लोग देख लीजिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रोपोर्शनलिटी के बारे में. सो सपोज एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, और ए बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल. ए बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या है, बी अगर बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, और बी अगर रिड्यूस होगा तो ए भी रिड्यूस होगा. ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और एक क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, 1/b. 1/b मतलब जब हम इनवर्स बोलते हैं तो इस हिसाब से लिखा जाता है. So if A is inversely proportional to B, that means if B will decrease, A will increase. मतलब B अगर पास होगा तो A का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, और B अगर दूर में रहेगा तो A का वैल्यू बहुत कम रहेगा. So this is the basic concept you should understand before moving on to the universal law of gravitation. So let's start यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन भाई साहब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ये ना और कुछ लॉ भी दे सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे ही बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही क्यों कहा?
बिकॉज ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वो चाहे गैलेक्सी हो, मिल्की वे गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, सोलर सिस्टम हो, हर जगह पर ये एप्लीकेबल है। प्लैनेट्स जैसे मूव कर रहे हैं वहीं पर भी ये एप्लीकेबल है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ये ग्रेविटेशन की वजह से उनको होल्ड करके रखा है वो। ओके, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट exerts the same amount of force. For example, हमारे पास एक अर्थ है, ये एक अर्थ जिसका हम मास ले लेते हैं m1। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ एक मास रहेगा ना, बिना मास के तो कुछ कर नहीं सकते। तो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, ओके, और एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है मान लीजिए m2। ओके, तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है कि आइजैक न्यूटन भाई साहब के हिसाब से अगर एक दो ठो ऑब्जेक्ट है जिसका कि है m1 और m2, ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर अर्थ मून के ऊपर जितने अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मून अर्थ के ऊपर भी अप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम बारीकी से इसको समझते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि ये दो ठो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, मैं आपको बोला कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि यही दो ठो जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह रहा है, एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से। ओके, इन दोनों के मास से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बोलता है कि यहाँ पर जो फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाई होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, इन दोनों का मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर इन दोनों का मास अगर रिड्यूस हो जाएगा तो फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा। और एक क्या बोले कि फोर्स इज inversely proportional to the square of distance between them। मतलब इन इन तो ये जो दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r हम क्यों लिए, d भी ले सकते हैं, ले सकते हो, लेकिन ये जो दो स्फीयर हम क्या किए, स्फीयर के पर्सपेक्टिव पर अगर हम बोलेंगे तो डिस्टेंस को हम मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस के हिसाब से मेजर करते हैं, इसलिए इसको r लिया गया। तो मतलब दो ठो ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। मतलब डिस्टेंस अगर बहुत दूर रहेगा तो फोर्स कम रहेगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा रहेगा। ये है, तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही बोला है कि मैं लास्ट में आपको वो बोलूँगा कि क्या है वो, जो आपको क्या लिखना है अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। सो और एक बार बोल देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पर देख लिए, ये है m1, ये है m2, इन दोनों के प्रोडक्ट से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो फोर्स है इनके अंदर जो डिस्टेंस है उसके साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 m2 बाय r², ये आ जाएगा हमारा। अभी आप लोग बहुत सारे रूल पढ़े हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़े हो, उनमें भी आपको पढ़े हो कि फोर्स कैसे हम चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से फोर्स निकाले थे। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को एक फॉर्मूला के बेसिस पर रखते हैं तो वो जो प्रोपोर्शनलिटी है वो एक कांस्टेंट टर्म बन जाता है। तो F इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को एक फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी लगेगा वो होगा कैपिटल G इंटू m1
m2 बाय आर स्क्वायर। राइटिंग पर मत जाओ रे। तो ये हो जाएगा हमारे ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला, जहां पर हम g को बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको बोला जाएगा क्या? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इसका जो वैल्यू है वो रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जहां पर भी जाओ आप, यूनिवर्स के जिस पार्ट पर भी जाओ, इसका वैल्यू इतना ही रहेगा। तो और एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। लेट अस स्टेट दिस, हाउ यू विल स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है स्टेट एंड डेराइव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें आपको ये बोलना है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in an universe, according to universal law of gravitation, in an universe, the force of attraction is directly proportional to the product of any two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये हो गया आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप नोट कर लो। अगर मैं कुछ स्पीड में बोल दिया हूँ, आप यूट्यूब में स्पीड ऑप्शन है, उसको स्लो करके आप उसको बारीकी से अपने नोट पर लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। 2 मार्क का कैसे आ सकता है? स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर 3 से 5 मार्क आएगा तो स्टेट एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोग क्या करोगे, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको दे देना इक्वेशन 1, इसको दे देना इक्वेशन 2, उसके बाद यहाँ पर लिखना कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइन करने के बाद इसको एक इक्वल हिसाब से यहाँ पर लिख देना। ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम निकालने वाले हैं इसका एसआई यूनिट, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट होता क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जी को बाहर निकालने के पहले मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास है ये आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से जी का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, ये हो जाएगा हमारा। अभी f का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। इसको हम n में डिनोट करेंगे। देन r का ऐसा यूनिट आप लोग जानते हो, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब मीटर। तो r का हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर बाय m1 और m2, मतलब दो ठो मास है, दो ठो मास का प्रोडक्ट है। एक मास का हम लिखते हैं kg, तो दो ठो मास का kg इंटू kg हो जाएगा kg स्क्वायर। तो हमारा ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आपको ये जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अभी जो भी हमने डिस्कस किया, इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट आता है, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, यू हैव द कमेंट सेक्शन, राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डाउट यू हैव। मैं पर्सनली तो नहीं, आपके हर एक कमेंट पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि कौन से कॉन्सेप्ट पर आपको कुछ भी डाउट है। और आपका काम है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं इस टाइप का सेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बोलें। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, फ्री फॉल। इसमें इतना ही है। इसमें दो ठो क्वेश्चन आपको मिल गया, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
स्टेट एंड डेराइव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और एक क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ पर, डेराइव द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसमें आप ऐसे करके निकाल सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट में बोल दिया। देखो, हर हर जो भी ऐसा, किसी भी ऐसा यूनिट को हमें निकालने के लिए पहले उस फॉर्मूला के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर एक था फोर्स, फोर्स का हम जानते हैं न्यूटन, तो लिख दिया हमने न्यूटन। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है एम स्क्वायर बाय m1 और m2 है। m1 और m2 है मतलब m1 मतलब एक मास का ऐसा यूनिट होता है kg, दूसरे मास का भी होगा kg, तो kg इंटू kg हो गया kg स्क्वायर। ओके, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है? आप लोग स्काई डाइविंग देखे होंगे। इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? स्काई डाइविंग हो रहा है। इस स्काई डाइविंग में आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? जब वो यहाँ पर एक फ्लाइट है, इस फ्लाइट से ये लोग कूदेंगे, जब इस फ्लाइट से ये दोनों ऐसे कूदेंगे तो यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों गिरने के टाइम अप्लाई हुआ, इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। If anyone is falling by the action of gravitation and absence of any force due to air, ये उड़ेंगे। देखो, ये स्काई डाइविंग पर ऐसे गिरे हुआ, अभी ये भी जो गिर रहे हैं, यहाँ पर दो ठो चीजें अप्लाई होगा। स्काई डाइविंग के टाइम दो ठो चीजें अप्लाई होता है, एक रहता है एयर फोर्स, एक रहता है एयर फोर्स, एयर का फोर्स, अब तुम लोग बोल सकते हो फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉरी सॉरी जब गिरने के टाइम एयर फोर्स एब्सेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। So free fall is the concept in which the object falls due to the action of gravitational force is known as free fall. Okay, so this is completed for our today's session. In the next section, that is on tomorrow, I will upload the video on acceleration due to gravity. So please support, interact with my videos. Please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अच्छा हो बुरा हो, आप लोग नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं, नेगेटिव कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि आप हमारे वीडियो में हमको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। कि आप लोग लिख सकते हैं कि आपको अगर कुछ सजेशंस चाहिए, हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, वो हम आप दे भी सकते हैं। थैंक यू।